Hello students, you are welcome in my channel. Here we have to discuss about the solubility. In previous video, we already discussed about solubility and factors affecting solubility. In present video, we have to discuss about the effect of pressure on solubility of gaseous solute in liquid solvent, which best explained by Henry's law. So what is Henry's law? In order to explain effect of pressure on solubility of gas in liquid solvent, William Henry studied solubility of different gas in liquid solvent at different pressure, keeping temperature fixed, and proposed a law in 1802 which called as Henry's law. गैसेस सॉल्यूट के लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर के दाब का अध्ययन करने के क्रम में हेनरीज लॉ ने एक्सपेरिमेंटल वर्क किया। विभिन्न गैसों के विभिन्न दाब पर सॉल्युबिलिटी का अध्ययन किया, स्टडी किया और एक लॉ प्रपोज किया जिसको हेनरी लॉ कहा जाता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट the solubility of a gas in liquid solvent is directly proportional to the pressure applied on gas at constant temperature. The solubility of a gas in liquid solvent is directly proportional to the pressure applied on gas at constant temperature. This statement based on experimental observation which made by William Henry. If solubility be S and pressure applied be P, then from law S proportional P. The solubility directly proportional to pressure at constant temperature. According to Dalton's law of partial pressure, solubility of a gas in liquid solvent is function of partial pressure of a gas above liquid surface. नहीं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार गैसियस सॉल्यूट का लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर का फंक्शन होता है। तो पार्शियल प्रेशर का मतलब वो पार्शियल प्रेशर यदि किसी गैस का अगर गैस कंपोनेंट ए है तो पार्शियल प्रेशर अगर पीए लिखते हैं तो पीए इक्वल मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर ये पार्शियल प्रेशर होता है। यानी पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है। यानी गैसियस प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। गैसियस प्रेशर मोल फ्रैक्शन पर या नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करता है। टोटल प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स एंड पार्शियल प्रेशर डिपेंड्स ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कंपोनेंट। तो व्हाइल a gas dissolving in liquid solvent, some of the gas molecule enters into liquid solvent and occupy the interstitial space. यानी गैस को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो कुछ गैस मोलिक्यूल सॉल्यूशन में इंटर करते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं एंड साइमल्टेनियसली गैस मोलिक्यूल ट्राई टू स्केप आउट, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। सो द गैस मोलिक्यूल डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट अप्लाई फोर्स at the liquid surface from the solution के तरफ से inside the solution. When the partial pressure of gas applied at liquid surface from upper position become equal to the pressure or force applied by gas molecule below the liquid surface, then gas makes a saturated solution in saturated solution. तो इस तरह से देखा जाता है कि गैसियस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर का पर डिपेंड करता है और पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म में हेनरी लॉ को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। The partial pressure of a gas above liquid surface is directly proportional to mole fraction of that gas in solution at constant temperature.
the partial pressure of a gas above liquid surface is directly proportional to mole fraction of that gas in solution at constant temperature. This is the statement of Henry's law. If partial pressure of gaseous solute be Pg, पार्शियल प्रेशर को यदि Pg से डिनोट किया जाए, G फॉर गैस एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन बी Xg, मोल फ्रैक्शन को Xg से डिनोट करें, देन फ्रॉम लॉ Pg प्रोपोर्शनल Xg एंड और Pg इक्वल KH इंटू Xg. प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने पर कांस्टेंट आ जाता है KH, जिसको हेनरी लॉ कांस्टेंट कहते हैं, वेयर KH इज हेनरी लॉ कांस्टेंट. इट इज प्रेशर टर्म एंड ऑब्टेन्ड एज KH इक्वल Pg बाई Xg. KH इक्वल Pg बाई Xg. दस हेनरी लॉ कैन ऑल्सो डिफाइंड एज, हेनरी लॉ को डिफाइन कर सकते हैं. The ratio of partial pressure of gas above liquid surface to the mole fraction of gas in solution is always constant at constant temperature. This is another statement of Henry law. The ratio of partial pressure of gas above liquid surface to the mole fraction of gas in solution is always constant at constant temperature. Henry constant is independent of amount of gas. Its magnitude depends on nature of gas and different for different gas. Henry law constant गैस के अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसका इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है और यह डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है. KH ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ गैस. KH टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर KH वैल्यू इंक्रीज होता है, इसलिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं गैस का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के साथ KH वैल्यू इंक्रीज करता है. तो इस तरह से गैस मोलिक्यूल का एस्केपिंग आउट टेंडेंसी भी बढ़ता है. सो KH वैल्यू ऑफ गैस इज मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी. KH वैल्यू गैस की मेजरमेंट, सॉल्युबिलिटी का मेजरमेंट होता है. हायर द KH वैल्यू लोअर बी द सॉल्युबिलिटी. गैस का KH वैल्यू जितना ही हायर होता है उसका सॉल्युबिलिटी उतना ही लो होता है. फॉर एग्जांपल KH फॉर हीलियम गैस एट 293 केल्विन इज 104 किलो बार एंड that of N2 gas is 88 kilobar. So solubility of helium gas is much lesser than that of N2 gas at 293 Kelvin temperature. क्योंकि 293 केल्विन टेम्परेचर पर हीलियम का KH वैल्यू नाइट्रोजन की KH वैल्यू से अधिक है, इसलिए हीलियम का सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है. तो इस तरह से हेनरी लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है. अब इसमें हेनरी लॉ को दूसरे टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर एक्टिंग अबव लिक्विड सरफेस इज ड्यू टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड escaping out tendency is due to force applied below liquid surface in solution is also due to mole fraction. So we can say that the ratio of mole fraction of gas above liquid surface to the mole fraction of gas in solution is always constant.
को कांस्टेंट कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट अबव लिक्विड सरफेस टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस तरह से हेनरी लॉ को हमने समझा। ओके, देन वी डिस्कस द application of Henry law. Henry law is useful in many ways in our daily life, such as, first, this law is applicable in preparation of soft drinks and soda water. Henry law soda water और soft drink preparation में applicable होता है। To increase the solubility of CO2 gas in water, बोतल सील्ड अंडर हाई प्रेशर, यानी सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर में CO2 गैस के सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए बोतल को हाई प्रेशर पर सील्ड किया जाता है, जिससे कि मोर एंड मोर CO2 गैस डिजॉल्व हो सके। सेकेंड एप्लीकेशन, दिस लॉ ऑल्सो अप्लीकेबल इन डीप सी डाइविंग। डीप सी डाइविंग में हेनरी लॉ अप्लीकेबल होता है। दिस इज टू अवॉइड बेंड प्रॉब्लम। बेंड प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हेनरी लॉ का अप्लीकेशन किया जाता है, यूज़ किया जाता है, जिसमें टू अवॉइड बेंड प्रॉब्लम डीप सी डाइवर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर अलोंग विथ देम इन विच O2 गैस डाइल्यूटेड विथ लेस सॉल्युबल हीलियम गैस। बेंड प्रॉब्लम से बचने के लिए डीप सी डाइवर अपने साथ हीलियम गैस से डाइल्यूटेड ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर ले जाता है। यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं करे, अगर O2 गैस के लिए एयर से भरा सिलेंडर ले जाए, यानी O2 के साथ N2 गैसेज हो, तो जैसे जैसे डाइवर समुद्र की गहराई पे नीचे की ओर बढ़ेगा, उसके बॉडी पर कॉलम का हाइट बढ़ता, वाटर कॉलम का हाइट बढ़ता जाता है, और हाइट बढ़ने से टोटल प्रेशर acting at the body of diver increases, and due to increase in total pressure, solubility of gases in their blood increases. And while they come up towards the surface, जब वो डीप सी से समुद्र की सतह की ओर आते हैं तो धीरे धीरे प्रेशर रिलीज होता है, और जब सतह पर पहुंच जाते हैं तो प्रेशर सडनली रिलीज हो जाता है, और सडन रिलीज होने पर एक्सेस डिजॉल्व्ड गैसेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन वाटर इन ब्लड ट्राई टू escape out fastly, suddenly, and this causes severe pain in their chest and joints. Due to fast escaping of more dissolved gases from blood, they suffer from severe chest pain and joint pain. This problem called as bend problem. और इस bend problem को अवॉइड करने के लिए डाइवर अपने साथ हीलियम गैस से डाइल्यूटेड ऑक्सीजन गैस ले जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है माउंटेनियर्स के साथ। दिस लॉ ऑल्सो अप्लीकेबल टू माउंटेनियर्स टू अवॉइड एनोक्सिया प्रॉब्लम। एनोक्सिया प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, to avoid anoxia problem, which is breathlessness due to deficiency of oxygen at high altitude. एनोक्सिया क्या है? यह ब्रेथलेसनेस है, और ब्रेथलेसनेस के कारण फास्ट ब्रीथिंग होता है, और फास्ट ब्रीथिंग में वोमिटिंग टेंडेंसी आ जाती है और ब्लड का वोमिटिंग होने लगता है, और इस तरह से माउंटेनियर्स का डेथ भी हो सकता है। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है वो एनोक्सिया कहलाता है, और इस एनोक्सिया से बचने के लिए क्लाइंबर जो है अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। नाउ वी डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट, दिस लॉ एप्लीकेबल टू गैस ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यह केवल लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी पर एप्लीकेबल होता है। Second, this law applicable to gas
of which molecular state remains as such in gas as well as liquid phase। यानी हेनरी लॉ वैसे गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, गैस के सॉल्युबिलिटी के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें गैस का मॉलिक्यूलर फेज मेंटेन रहता है, उसके गैसियस और लिक्विड फेज दोनों में, गैसियस फेज में हो या सॉल्यूशन में, दोनों में मॉलिक्यूलर फेज मेंटेन हो, वैसे गैस के लिए यह लॉ एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड एंड लास्ट लिमिटेशन, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिएक्टिंग गैसेस। यह लॉ रिएक्टिंग गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, लाइक HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अमोनिया गैस, इन सब गैसों के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दीज आर मोर soluble in water due to reaction, because these gases reacts with water and become more soluble, such as hydrogen chloride when allowed to dissolve in water, it dissociated into H plus ion and Cl minus ion and get aquated, and therefore HCl is highly soluble in water. Ammonia gas while dissolving in water, it first react to form ammonium hydroxide, which establish ionic equilibrium with its ions ammonium ion and hydroxide ion, and therefore ammonia is highly miscible in water. Another reason of miscibility of ammonia is the similar tendency to form H bond association. तो इस तरह से अमोनिया गैस पर और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पर हेनरी लॉ का एप्लीकेशन नहीं होता है। ये उस तरह के गैसेस जैसे नॉन पोलर गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब गैसों के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग हेनरी लॉ को जाने समझे, और आई थिंक इसमें सभी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अभी यदि ये सभी चीज़ें स्पष्ट हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, तो आप सब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ताकि अदर बच्चे, अदर स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो और मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।